शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद ते शुक व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार ना पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। A very warm morning to all of you, and I wish you a very happy and healthy New Year 2021. अभी जो ये 4 पंक्तियाँ मैंने बोली हैं ये कवि रसखान जी की हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के बारे में ये 4 पंक्तियाँ लिखी थी। कितना खूबसूरती से उन्होंने इसमें शब्द अलंकारों का उपयोग किया है। इन 4 लाइनों में एक पैटर्न है। पहली लाइन में आप देखेंगे कि श का रिपीटिशन है। दूसरी लाइन में अ, इन सारे वर्ड्स के स्टार्टिंग में अ का रिपीटिशन है। तीसरी लाइन में आप देखेंगे कि यहाँ प, वर्ड्स के स्टार्टिंग में प का बार बार रिपीटिशन है, और यहाँ छ साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरती से शब्दों का चयन किया है यहाँ कवि ने, जिससे कि ये 4 लाइनें गाने में भी और पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। Yes, today's topic is figures of speech. We can say this poetic devices also, literary devices also. As I told you, a poet uses some styles or techniques to make his or her work effective. Maybe this is poems or prose. Today we are talking about all these poetic devices. First of all, speak aloud these 2 sentences. She sells seashells by the seashore. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. So, can you see some pattern in these 2 sentences? Yes, there is some pattern. There is a repetition of s sound at the starting of some words. As it is here, repetition of per sound in starting of some words. So this repetition of sounds is called alliteration. Alliteration is the most used poetic device in your poems. I have taken some poetic devices and examples from class 10th poems. The repetition of a consonant sound at the starting of 2 or more words in a sentence, and alliteration is used in your poems. First of all, and saved some part. This is from The Dust of Snow. And saved some part. Here you can see the repetition of s sound in 2 words. Next, some say the world will end. This is from Fire and Ice. Some say, repetition of s sound again. Next, I hold with those who favor fire. Favor fire, f sound रिपीट हो रहा है, ये भी आइस एंड फायर एंड आइस में से है. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. दिस लाइन इज फ्रॉम अमेंडा, and here you can see the repetition of s sound at the starting. So this poetic style, this poetic device is called alliteration, और हिंदी में इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं. जो अभी मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी थी उसमें पचिहारी तऊ पुनि पार ना पावे, तो इसमें प साउंड का रिपीटिशन वर्ड के स्टार्टिंग में हो रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार है. नेक्स्ट, read these lines. Mike likes his new bike. I will crawl away the ball. Can you see some repetition in these 2 lines? Yes, that is the repetition of E sound, which is denoted by I. I will crawl away the ball.
again there is in the second line, this is a repetition of l sound at the end of these words, and in first sentence there is also the repetition of k sound. This is called consonance. The repetition of a consonant sound in a sentence, it can be at the beginning, middle or end of the word. As we see in the first sentence, there is repetition of I sound and also there is a repetition of k sound. Mike likes his new bike. And in the second, I will crawl away the ball. So this is a repetition of l sound here. So this is very much similar to alliteration, but alliteration comes at the starting of the word and consonance comes anywhere in the middle or at the end, like the mania of owning things. This line is from your poem Animals. Mania of owning things. No sound repeat हो रहे हैं बार बार. They don't lie awake in the dark. K sound. Next, on pads of velvet quiet. Here t sound is repeating. I pattern soft dust with my hushed bare feet. T sound here again repeating. So consonants और alliteration दोनों सेम ही हैं. हम ये कह सकते हैं कि alliteration एक ऐसा consonants है जो कि word के starting में आता है. मे बी कि आपको options में alliteration ना दे के सिर्फ consonants दिया हो या फिर consonants ना दे के alliteration दिया हो, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि alliteration और consonants एक ही चीज़ है, बट alliteration जो है वो word के starting में आएगा और कॉन्सोनेंट्स कहीं भी आ सकता है. दोनों ही रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं. नेक्स्ट, रीड दीज टू लाइंस. गो स्लो ओवर द रोड. द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन. यस, वी हैव now vowel sound repetition, o sound repetition in this first sentence and a sound repetition in this sentence. The rain in Spain stays mainly on the plain. A sound repeat हो रहा है बार बार. तो repetition of vowel sounds in two or more words in a sentence is called assonance. Assonance. Assonance is used in your poems I hold with those who favor fire. O sound यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये फायर और आइस में से है. He stalks in his vivid strips. यहाँ आई यानी ई साउंड रिपीट हो रहा है. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. लिव विद एनिमल्स. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. ई साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है. तो कॉन्सोनेंट साउंड्स अगर रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स, और वोवल साउंड अगर किसी लाइन में बार बार रिपीट हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड एजोनेंस. नेक्स्ट, on pads of velvet quiet in his quiet rage and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. These lines are taken from your poem A Tiger in the Zoo. इन लाइन्स में आप देखिए कि कुछ यहाँ भी कुछ रिपीट हो रहा है. These words are repeating here. Quiet, quiet. Here, brilliant, brilliant. तो जब वर्ड्स पूरे के मतलब पूरा वर्ड ही किसी स्टैंजा में या किसी दो तीन लाइंस में पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसे कहेंगे हम रिपीटिशन. रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स. इट इज़ द रिपीटेड यूज़ ऑफ अ वर्ड ऑफ लाइन टू ले एम्फेसिस, यानी किसी बात पे जोर देने के लिए उस वर्ड को बार बार उस स्टैंजा में दो तीन बार यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द बॉय नाउ who has lost his ball? What is he to do? This line is taken from the Ball poem. So what is repeating again and again to emphasize the thing. Second is suddenly they heard a nasty sound. This is from Custard Dragon, A Tale of a Dragon, Custard Dragon. So suddenly is repeated
here. Next, just read these 3 lines. They do not sweat and whine, they do not lie awake, they do not make me sick. So this is a different style of repetition. हम हिंदी में भी कई बार बोलते हैं पोएम्स में और स्पीच में, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है बंजर ज़मीन पर खेती नहीं हो सकती, कौन कहता है अंधेरे में रास्ता नहीं दिख सकता, कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुक सकता, कौन कहता है आप इंग्लिश में फुल मार्क्स नहीं ला सकते। नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं, बस चाहिए तो हौसला और हिम्मत, परिश्रम और प्रयास। तो इस तरीके से किसी भी स्पीच को या किसी भी पोएम को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इस तरह का रिपीटिशन यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में। कोई हमें 4-5 सेंटेंसेस एक ही आइडिया वाले बोलने हैं तो उनके स्टार्टिंग में हम कोई फ्रेज़ या कोई वर्ड हम सेम यूज़ करें, तो ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव स्टाइल होती है पोएटिक डिवाइस, और इसे कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा, द रिपीटेड यूज़ ऑफ वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स, मीन्स लगातार 2-3 लाइन्स को हम एक ही फ्रेज़ या एक ही वर्ड से स्टार्ट करें उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तो ये एनाफोरा है। दिस इज़ यूज्ड इन योर पोएम एनिमल्स। Not one is dissatisfied, not one is demented, not one kneels to another, not one is respectable. These 3 lines are starting from not one. Then in Amanda, don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda. तो यहाँ don't का repetition हो रहा है, ये एनाफोरा है। ये स्टार्टिंग में जब हम लाइन को स्टार्ट करेंगे, किसी भी सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं तब ये स्टार्टिंग में आता है एनाफोरा हमेशा। और रेपिटिशन वो आपके स्टैंजा में कहीं भी आ सकता है, किसी भी एक स्टैंजा में 2-3 बार कोई वर्ड रिपीट हो जाए वो रेपिटिशन होता है। और एनाफोरा में कोई भी वर्ड या फ्रेज़ सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है हमेशा। These 3 lines are taken also from your poem Animals. Next, there is velvet grass in this garden, this grass is as soft as velvet. Can you see some difference in these 2 lines? Yes, there is a comparison, but in second line the comparison is clear, means a primary student, even a primary student can identify the comparison कि grass को velvet से compare किया गया है कि ये जो grass है वो velvet जितनी soft है, so there is a open and clear comparison. But in this sentence there is velvet grass in this garden. यहाँ भी कंपैरिजन हुआ है, यहाँ भी ग्रास को वेलवेट बताया गया है, यानी वेलवेट ग्रास नहीं होती, वेलवेट एक सॉफ्ट क्लॉथ होता है और ग्रास को वेलवेट बताने का मतलब ही यही है कि वो इतनी सॉफ्ट है जितना कि वेलवेट। बट यहाँ जो कंपैरिजन है वो सीक्रेट कंपैरिजन है, हिडन है, उसे जल्दी से कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर हम उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। तो जहाँ पर कंपैरिजन हिडन होता है उसे मेटाफर कहते हैं, और जहाँ ये क्लियर है बिल्कुल लाइन में, जैसे कि एज वर्ड से हमें पता लग रहा है कि यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम, एज लाइक इस तरह के वर्ड्स का यूज़ होता है, तो ये क्लियर है कंपैरिजन, कोई भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि यहाँ कंपेयर हो रहा है, तो इसे सिमिली कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफर, मेटाफर हिंदी में भी हम यूज़ करते हैं, पोएटिक डिवाइस रूपक कहते हैं इसे। व्हेन अ कवर्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स और आइडिया, यानी हिडन कंपैरिजन, सीक्रेट कंपैरिजन। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो में ये यूज़ हुआ है कि स्नो को डस्ट से कंपेयर किया गया, यानी स्नो के इतने बारीक पार्टिकल्स जो कि डस्ट की तरह हैं, डस्ट की तरह लग रहे हैं, तो डस्ट ऑफ स्नो में डस्ट से स्नो को कंपेयर किया गया। फायर एंड आइस, इसमें फायर को डिज़ायर से कंपेयर कर रहे हैं, आइस को हेट्रेड से कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट द टाइगर, टाइगर वाली पोएम में है ये, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसमें जो टाइगर के सोल्स हैं वो इतने सॉफ्ट हैं, जो वेलवेट से उसे कंपेयर किया गया है, वेलवेट क्वाइट। यहाँ कोई एज वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ना लाइक यूज़ हुआ है, ये एक हिडन कंपैरिजन है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, यानी ये जो उसके यंग डेज़ हैं, चाइल्डहुड डेज़ हैं, वो हार्बर में चले गए। तो डेज़ तो हार्बर में जा नहीं सकते, तो यहाँ पर यंग डेज़
किसके साथ कंपेयर किया गया है उसे, जो बॉल उसकी वाटर में चली गई है उसके साथ उसके चाइल्डहुड डेज को कंपेयर किया गया है। अमेंडा अ मरमेड, यहाँ अमेंडा वाली पोएम में ये सारे मेटाफर्स हैं। अ मरमेड, वो मरमेड से अपने आप को कंपेयर करती है, ऑर्फन से, रेपुंजल से। तो ये जो तीनों हैं ये किसके मेटाफर है? फ्रीडम के। एक तरह से वो फ्रीडम चाहती हैं इन तीनों को इमेजिन करके। नेक्स्ट इसी पोएम में से है एमराल्ड सी। एमराल्ड एक स्टोन होता है ग्रीन कलर का, तो वो कह रही है कि एमराल्ड सी। यहाँ हिडन कंपैरिजन है, ऐसा नहीं बोला कि सी इज़ लाइक एमराल्ड। एमराल्ड सी का मतलब है सी इज़ एज ग्रीन एज एमराल्ड स्टोन। साइलेंस इज़ गोल्डन, साइलेंस इज़ एज प्रीशियस एज गोल्ड। फ्रीडम इज़ स्वीट। तो यहाँ इन तीनों को कंपेयर किया गया है। सो दिस इज़ मेटाफर। चिमनी फॉर अ नोज, दिस इज़ फ्रॉम कस्टर्ड द ड्रैगन। चिमनी फॉर अ नोज, यहाँ ये नहीं कहा गया है कि चिमनी वॉज लाइक, हिज नोज वॉज लाइक अ चिमनी। चिमनी फॉर अ नोज यानी कि उसकी नोज ही चिमनी है, हिडन कंपैरिजन है। तो यहाँ पर मेटाफर यूज हुआ है इन सब पोएम्स में। नेक्स्ट इज सिमिली, व्हेन एन ओवर्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। ओवर्ट मीन्स ओपन एंड क्लियर, जो कि इजीली आइडेंटिफाई कर पाए हम। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज। ये लाइन आपकी कस्टर्ड द ड्रैगन में से है, जिसमें एक ही लाइन में मेटाफर और सिमिली दोनों यूज़ हो रहे हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज। चिमनी फॉर अ नोज में आपका मेटाफर यूज़ हुआ है, एंड माउथ लाइक अ फायर प्लेस यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ हो गया है, तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि माउथ को फायर प्लेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सिमिली हिंदी में उपमा अलंकार है, जिसे उपमा अलंकार हम पढ़ते हैं। And in second line, this is the same poem, Belinda was as brave as a beryl. सिमिली ये जो आपके कस्टर्ड द ड्रैगन वाली पोएम में ही ज़्यादा यूज़ हुआ है सिमिली का। Belinda was as brave as beryl, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon. He went at the pirate like a robin at the worm. तो आपको बस इतना ध्यान रखना है मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस है। मेटाफर में आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया मिलेगा कि जिससे आपको कंपैरिजन का पता चले, बट सिमिली जहाँ होगी वहाँ लाइक, एज, ये वर्ड्स दिए होंगे। अगर कहीं पर लाइक है, एज आ गया तो वहाँ सिमिली है, और अगर वो नहीं आया, जैसे यहाँ पर कोई लाइक या एज कोई वर्ड नहीं है, तो ये मेटाफर है। ऑल राइट, नेक्स्ट द नेक्स्ट डिवाइस इज सिम्बोलिज्म। जैसे कि हमें इसके वर्ड से पता चल रहा है, सिंबल यानी किसी चीज़ को हम एक एज अ सिंबल यूज़ करें किसी इमोशंस के लिए या किसी और चीज़ों के लिए, तो इसे सिम्बलिज्म कहते हैं। व्हेन समथिंग इज़ यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ सम इमोशन और सम अदर थिंग। सिंबल आपके पोएम्स में कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री आपके में द डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम में हेमलॉक ट्री आया है। हेमलॉक ट्री एक्चुअली एक पॉइजनस ट्री होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। हालांकि हमारे पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अमेरिकन पोएट हैं, तो उन्होंने इसे हेमलॉक ट्री को अपनी पोएम में एज अ सिंबल यूज़ किया है। ये एक डेथ का सिंबल है, सौरों का, दुख का सिंबल है। क्रो, यहाँ क्रो भी एक, इसी पोएम में क्रो भी एक इल अमेन, एक्चुअली दिस इज इल अमेन, टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ अशुभता का, यहाँ हमारे भी कल्चर में इसे क्रो को एक अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इल अमेन यहाँ बैड लक का सिंबल है क्रो। स्नो, स्नो भी यहाँ एक सिंबल है कि स्नो पोएट के ऊपर गिरती है तो उसका मूड चेंज हो जाता है। तो स्नो यहाँ पे एक सिंबल लिया गया है उन सब चीज़ों के लिए जिनसे हमारा मूड चेंज हो जाए। And now in the poem Fire and Ice, fire is a symbol of uncontrolled desires and ice is a symbol of hatred. Fire and Ice एक symbolic poem है जिसमें fire और ice दोनों ही symbol यूज़ किए गए हैं ह्यूमन डिज़ायर्स और हेट्रेड के लिए। नेक्स्ट, सिम्बोलिज्म इज़ यूज्ड इन द बॉल पोएम। उसमें बॉल एक सिंबल है किन चीज़ों का, जिन लोगों को या जिन चीज़ों को हम उनके लिए पॉजेसिव रहते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन चीज़ों के लिए बॉल एक सिंबल है कि बच्चे की बॉल खो गई है
इसको एक सिम्बलाइज किया गया हमारे लिए भी कि हमारी भी कोई चीज़ ऐसे लविंग थिंग कोई भी खो जाए, या कोई हमारा लविंग पीपल कोई हमसे दूर चला जाए तो हमें कैसा महसूस होता है। और यहाँ इस पोएम की एक दो लाइनों में बॉल उसके चाइल्डहुड डेज को भी मेटाफर करती है या उसका भी सिंबल है। नेक्स्ट डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ भी आपको इसके नाम से क्लियर हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन यानी पर्सन, किसी पर्सन की क्वालिटी को हम किसी और चीज़ में अगर रख दें जो कि पर्सन नहीं है तो दिस इज कॉल्ड personification. This is used to bestow human qualities on something else that is not human. जैसे कि हमारे इंडियन माइथोलॉजी में हम देखते हैं कि हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल देवता कहते हैं हम उन्हें, यानी कि हमने पीपल के ट्री का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। गाय को हम माता कहते हैं, सूर्य देवता। तो इन जो नेचुरल थिंग्स का हमने पर्सोनिफिकेशन किया हुआ है, यानी ह्यूमन एज अ ह्यूमन उसे हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है। आपके पोएम में देखिए, द टाइगर इन द जू में ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो यहाँ टाइगर का पर्सोनिफिकेशन किया गया है क्योंकि यहाँ पर टाइगर के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, ही जबकि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए हम इट यूज़ करते हैं जनरली, बट यहाँ पे ही यूज़ किया है। इट मीन्स कि वो टाइगर को एज अ ह्यूमन बींग बताना चाहता है पोइट। तो अगर किसी एनिमल के लिए आप कहीं पर ही देखें, इट मीन्स उसका वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट आप ये ड्रैगन वाले पोएम में देखिए, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। तो इसमें बताया गया है कि वो जो तीनों पेट्स होते हैं वो ड्रैगन को चिढ़ा रहे हैं या उस पर हंस रहे हैं। तो ऐसा कभी भी एनिमल्स नहीं करते, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है कि ह्यूमंस दूसरों को चिढ़ाते हैं, उन पर हंसते हैं। तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया इन सब का, इन पेट्स का। So this is personification. Next device is enjambment. Enjambment means जब किसी पोएम में एक ही सेंटेंस दो तीन लाइनों में कंप्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पोएम है फायर एंड आइस, इसमें ये लास्ट की 3 लाइन्स में एन्जाम्बमेंट यूज़ हुआ है और कहीं किसी पोएम में नहीं है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट मीन्स दिस सेंटेंस इज़ नॉट completed. To say that for destruction ice, what does it mean? Ice is also great and would suffice. This sentence is continuing in these 3 lines. Now here this is complete. So this is called enjambment. Now just consider these words: mew, mew, bow, wow, hiss, quack, croak, splash, buzz, tick, tick, ding, dong, boom. What do they mean? What are the meanings of these words? Yes, these words don't have any meaning because these are representing some sound. So all these words are called onomatopoeia. This poetic device is used to represent or denote or describe any sound. When a word is used to describe a sound, this is called onomatopoeia. Like in your poem, Custard the Dragon. And Blink said, weak. This is weak. So weak is a sound. This is a sound produced by mouse. Next is Mewch, cried Ink. Ink was a kitten and the sound of kitten is mew, or Mewch is a sound produced by Ink, the kitten. So these type of word when used to make something effective, to make some poetry or prose dramatic or effective, then this is called onomatopoeia. Next, consider these lines: speech is silver but silence is gold, patience is bitter but it has a sweet fruit, you are easy on the eyes but hard on the heart. Can you see some contrast in these 3 lines? Yes, there is some contrast. There are
opposite words, speech, silence, bitter, sweet, easy, hard. तो इन सेंटेंसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए हैं। हालांकि ये लाइन एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट अपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया गया है उसे और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। दिस पोएटिक डिवाइस इज़ कॉल्ड एंटीथीसिस। एंटीथीसिस यहाँ भी हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, एंटी मीन्स अपोजिट, विच इज़ अपोजिट टू सम अदर थिंग। When two opposite things are used in a poem to reveal an idea, then this is called antithesis. This is used in your poem Fire and Ice, because fire and ice, these are two opposite things, and these two things are represented to reveal an idea in this poem, that fire and ice both are responsible to destroy the world. Next is allusion. एल्यूजन, जब कभी भी हम किसी माइथोलॉजिकल या किसी स्टोरी या किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर का यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग में, कोई पोइट्री राइटिंग हो या प्रोज राइटिंग हो, तो दैट इज़ कॉल्ड एल्यूजन, रेफरेंस और सजेशन टू अ हिस्टोरिकल और वेल नोन पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल, इन अमेंडा, मरमेड इज़ अ कैरेक्टर, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, क्योंकि मरमेड एक कैरेक्टर है जो ऊपर से ह्यूमन बीइंग है, ऊपर से एक गर्ल है और नीचे से एक फिश की शेप में है वो, विच इज़ नॉट अ रियल कैरेक्टर, जो कि रियल नहीं है, बट दिस इज़ अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर मरमेड, उसे इस पोएम में यूज़ किया गया है. रेपुंजल, रेपुंजल फेयरी टेल्स का एक कैरेक्टर है रेपुंजल. तो जब हम कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर या स्टोरी में से कोई कैरेक्टर ले लें या फिर कोई और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर किसी पोइट्री में यूज़ करें, तो इसे कहते हैं एल्यूजन. ये कोई इमेजिनरी भी हो सकता है. नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन. इट इज़ व्हेन अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स अपीयर इन कंजक्शन, और जब कहीं पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स मीन्स अपोजिट थिंग्स एक साथ आ जाएं, लेकिन ये एंटीथेसिस से डिफरेंट है. ठीक है, हियर द वर्ड्स आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर लाइक इट इज़ इन एंटीथेसिस, बट देयर मीनिंग्स आर अपोजिट. उसके मीनिंग अपोजिट होते हैं बट वर्ड्स अपोजिट नहीं होते. लाइक दिस फ्रेज कस्टर्ड द ड्रैगन में ये फ्रेज यूज़ हुआ है, इसमें ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस है. पेट ड्रैगन. अब देखिए, यहाँ पेट और ड्रैगन दोनों अपोजिट वर्ड्स नहीं हैं, बट इनका मतलब अपोजिट है, क्योंकि पेट का मतलब क्या होता है, वो एनिमल्स जिन्हें हम घर पे रखते हैं, पालते हैं. और ड्रैगन, ड्रैगन तो एक डेंजरस एनिमल है, वाइल्ड है वो बहुत, तो ड्रैगन को तो कभी भी घर में नहीं रख सकते. तो ये दोनों एक अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं दोनों वर्ड्स, बट दे आर नॉट क्लियरली अपोजिट. अगर ये क्लियरली अपोजिट होते तो एंटीथीसिस होता, लेकिन यहाँ ये क्लियरली अपोजिट ना होकर अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, जो कि ऐसा संभव नहीं है. मतलब वी कैन नॉट बिलीव दैट देयर इज़ अ पेट ड्रैगन, कि पेट ड्रैगन हो सकता है, जो बिलीवेबल ना हो और जो दोनों अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी हो, एक दूसरे से विपरीत. तो ये ऑक्सीमोरन. नेक्स्ट डिवाइस इज़ रिफ्रेन. रिफ्रेन बहुत कम यूज़ होता है पोएम्स में, बट कभी कभी हम देखते हैं कि किसी पोएम में या किसी सॉन्ग में एक शुरू की लाइन ही स्टेंजा की लास्ट में वही लाइन बार बार रिपीट होती है. जैसे कि 9th क्लास में एक पोएम है, सेड द डक टू द कंगैरू. डक और कंगैरू जो कि अभी शायद डिलीट हो गई है आपके सिलेबस में से. तो उस पोएम में सेड द डक टू द कंगैरू, ये लाइन हर स्टेंजा के लास्ट में, हर 3 लाइन के बाद में, हर 3 या 4 लाइन के बाद में बार बार रिपीट हो रही है. तो ये भी एक स्टाइल है किसी पोएम को इफ़ेक्टिव बनाने की. कोई भी लाइन को हम हर 3 या 4 लाइन के बाद बार बार रिपीट करें, तो इसे रिफ्रेन कहते हैं. नेक्स्ट इज़ पोएटिक लाइसेंस. पोएटिक लाइसेंस भी बहुत कम यूज़ होता है पोएम्स में, बट क्लास 10th की हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में ये बहुत यूज़ हुआ है पोएटिक लाइसेंस. पोएटिक लाइसेंस में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट दिस इज़ फॉर योर नॉलेज, कि एक जैसे कि एक लाइन ले ली हमने, एज सून एज इट लेफ्ट ऑन यू,
he will only leap and leap again. This was the line. ओके सो लेफ्ट, यहाँ जो ये वर्ड है ये एक्चुअली इसकी स्पेलिंग लेफ्ट होनी चाहिए थी, और ये जो लेप है इसकी स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी LAEP। बट पोइट ने अपनी राइमिंग स्कीम को, यानी अपने जो पोएम की राइम्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, राइम्स को परफेक्ट करने के लिए इन स्पेलिंग्स में कुछ चेंज कर दिए हैं। तो इसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। जब कोई पोएट अपनी पोएम की राइम्स को सेट करने के लिए किन्हीं वर्ड्स में के स्पेलिंग्स में कुछ चेंजेस कर दें अपने हिसाब से, तो उसे कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। मे बी आगे आपको ये डिवाइस यूज़ हो। So these are all about poetic devices. I hope now you have understood poetic devices, क्योंकि ये आपके 12th तक काम आएंगी, इसीलिए आपको ये devices अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। So okay dear students, thank you and have a nice learning all of you.